Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDI practice series. First pause this video, try this set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this set. So this says there are 9 families Acharya Bajpayee, Chow Sharia. So I'll just read them as A, B, C, D, E, F, G, H and I. They have purchased 9 different flats in the new high-rise building Paradise Towers. The building has 20 stories numbered from 1 to 20. So these are the 20 stories. We have already made a table. So 1 से लेके 20 तक there are floor. In addition to the ground floor and basement which are reserved for parking. So ground floor and basement है, but they are only meant for parking. We don't need that specifically here, right? And each story has only one flat. तो हर एक floor number पे exactly there is one flat. The flats are priced differentially, that is different prices, differentially in 4 price bands. Now different price values हैं आपकी flats की. Flats in the bottom 5 stories, that is 1 to 5, are priced at 60 lakhs each. So basically 1 to 5. So from here to here, all the flats are priced at 60 lakhs each. So this is 60 lakhs. Then in sets of 5 basically, right? 6 to 10 are priced at 70 lakhs. So from 6, 7, 8, 9, 10, the flats are priced at 70 lakhs. Then in stories from 11 to 15, then again the set of 5. So 11 to 15, they are priced at 80 lakhs. And finally from 16 to 20, that is what is written, from 16 to, so this would be 20, right? Just check if this was 16 to 20. Here it is also 16 to 20. So from 16 to 20, these are priced at 90 lakhs each. So this has to be 90. Right, the following data was recorded. So basically we'll have to figure out who is living where. These are the price values of the different flats. Now, at least 2 flats were purchased in each of the 4 price bands. Right, so at least 2 flats were purchased in each of the 4 price band. So हर एक price band में मतलब out of these 5, at least 2 have been bought. Now remember the total number of families या the total number of flats that would be bought is actually 9. Now ये बोल रहा है कि 4 प्राइस बैंड्स हैं 60, 70, 80, 90 के, उनके नंबर ऑफ फ्लैट्स फ्रॉम ईच ऑफ द प्राइस बैंड्स इज एटलीस्ट 2. दैट मीन्स एक ही तरीका होगा, फ्रॉम ईच ऑफ द प्राइस बैंड अगर एटलीस्ट 2 है तो किसी एक में, बिकॉज दीज ऑलरेडी एड अप टू 8 फ्लैट्स, टोटल आपको कितना चाहिए 9. दैट मीन्स कोई एक नंबर इसमें से क्या होने वाला है 3 होने वाला है. वी डोंट नो एज ऑफ नाउ कि कौन सा आपका 3 बनेगा कौन सा आपका 2 रहेगा, बट देयर इज अ प्राइस बैंड इनमें से, चाहे 90 हो चाहे 80 हो चाहे 70 हो चाहे 60 हो, किसी एक प्राइस बैंड का जो नंबर ऑफ फ्लैट्स सोल्ड आउट होगा वो क्या होने वाला है 3 होने वाला है. सो विल फिगर दिस आउट. नाउ this is done. At least 2 flats are purchased in each of the 4 price bands. Then only one pair of families, Damani and Habib, bought flats on consecutive stories. However, they paid different amounts. Now ये important है, Damani and Habib, DNH जिसको हम represent करेंगे, DNH is the only pair of families, are the only 2 families who have bought flats on consecutive stories. Consecutive stories simple, जैसे 11, 12, 12, 13, 13, 14 and so on. Consecutive stories. However, they have paid different amounts. तो DNH जो भी है वो different amounts के फ्लैट्स खरीद रहे हैं बट कंजेक्यूटिव खरीद रहे हैं. तो ये कहाँ पे पॉसिबल होगा, जहाँ पे ये प्राइस बैंड आपका ट्रांजिशन ले रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे 5 to 6 हो सकता है, 10, 11 हो सकता है, 15, 16 हो सकता है, एंड दैट्स ऑल, राइट. और कुछ नहीं हो सकता बिकॉज डिफरेंट प्राइजेस होने चाहिए. तो वो जो बाउंड्री एक तरीके से जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, वो बाउंड्री जस्ट क्रॉस होनी चाहिए. तो 15, 16, 10, 11, 5, 6 ये सब के लिए वो वैलिड है. 3 ही पॉसिबिलिटी है DNH के लिए. ऑल्सो अभी फॉर द टाइम बिंग DNH का ऑर्डर भी नहीं पता है कि ऊपर कॉलम D है या फिर आपका H है, बट हाँ दिस गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अस. Now the total amount paid by the 9 families was 680 lakh. Can we deduce anything out of this? Yes. Why yes? हमें ये पता है कि हर एक प्राइस बैंड में से एटलीस्ट 2 तो हम बाई कर ही रहे हैं. 2 जो भी फैमिलीज बाई कर रही है, वी आर नॉट स्पेसिफिकली बाइंग, बट 2 आपके वो फैमिलीज बाई कर रहे हैं, किसी एक जगह से 3 आने वाला है. तो व्हाट आई कैन सिंपली से कि लेट्स से हर जगह से मिनिमम 2 तो बाई हो ही रहा है ना. तो 2 टाइम्स 60 प्लस 2 टाइम्स 70 प्लस 2 टाइम्स 80 प्लस 2 टाइम्स 90, इनका सम पहले आप देख लो. तो 60, 70, 80, 90 को ऐड करके डबल कर सकते हैं, अल्टीमेटली द सेम थिंग. सो मिडिल वैल्यू उनकी क्या होती है 75, राइट. सो 75 into 4 and that will give you 300. So 300 lakhs
आपका एक एक फ्लैट का हुआ, इनके डबल डबल कर देंगे तो सिंपली इट वुड बी 600। तो मिनिमम सब में से 2 बाई करा तो 600 लाख तो लग गया, बट टोटल एक्चुअली में है कितना, 680 लाख है। तो 80 लाख किसी एक फ्लैट से और एक्स्ट्रा आएगा, दैट मीन्स 80 लाख ही वो प्राइस बैंड है जहाँ से वी नीड अ टोटल ऑफ व्हाट, 3 फ्लैट्स। तो इस वाले प्राइस बैंड में वी नीड अ टोटल ऑफ 3 फ्लैट्स। दैट मीन्स वी कैन नाउ बी श्योर कि बाकी सारे प्राइस बैंड में से कितने कितने फ्लैट्स अपने बाई करें, 2 ईच। सो दिस स्टेटमेंट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंफॉर्मेशन। नाउ द सम टोटल ऑफ द स्टोरी नंबर्स ऑफ द 9 फ्लैट्स वॉज 100। अभी क्या है, 9 नंबर्स बेसिकली, जो फ्लैट या फ्लोर नंबर या फ्लैट जो भी आप बोल सकते हो, ये जो स्टोरी नंबर है या फ्लोर नंबर है, इनका 9 नंबर्स का एडिशन कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। वी कैन डू दिस, वी कैन स्टार्ट फिगरिंग दिस आउट, बट अभी क्या है ना, अभी एक भी नंबर आपको यूनिकली नहीं पता है। मे बी दिस स्टेटमेंट विल कम अ लिटिल वाइल लेटर, जहाँ पे मे बी कुछ नंबर्स आपने स्पेसिफिकली फिगर आउट कर लिए होंगे, उसके बाद वो 100 का सम बनाने के लिए देयर विल बी ओनली अ फ्यू पॉसिबिलिटीज लेफ्ट मे बी, तो उस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल रहेगा। सो लेट्स कीप दिस स्टेटमेंट ऑन होल्ड, द सेकेंड एंड फोर्थ हैव बीन stayed put, right? Now let's go to the fifth statement. This is giving me a unique information. No flats were bought on stories 6, 7 and 20 by any of the 9 families. बहुत सिंपल हो गया, तो 6 पे क्रॉस डाल दो, कोई भी फैमिली बाई नहीं कर रही है, 7 पे भी नो फैमिली इज बाइंग एंड 20 पे भी नो फैमिली इज बाइंग, ये क्रॉस आउट हो गए। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो डन। Next, the Acharya and Bajpayee families are the farthest among these 9 families. तो इसका तो एक ही कंक्लूजन निकलता है ना, farthest है, that means A और B एक्सट्रीमिटीज होने चाहिए। वो जो 9 आपके यहाँ पे कहीं में प्लेस करोगे अल्फाबेट्स, उसमें A और B सबसे डिस्टेंस अपार्ट होने चाहिए। सो आइदर इट कुड बी द टॉप वन इज A, टॉप वन नॉट स्पेसिफिकली 19, राइट, 19 नहीं बोल रहा हूँ, बट जो सबसे एक्चुअली में जो बाई कर रखा आउट ऑफ दिस 9 फैमिलीज, उसमें A होगा, और सबसे बॉटम में इट इज B, इट कुड बी B, or the other way around, it could be B as at the top or it could be A at the bottom. तो दो possibilities हैं, but हाँ, A and B are farthest apart. This is good to go. Only the Bajpayee and Ganguly families paid less than the Damanis. Now this is interesting. यहाँ पे अब देखो सेकेंड और सेवेंथ स्टेटमेंट को साथ में वापस से विजुलाइज करते हैं। Only one pair of families, Damani and Habib, bought flats on consecutive stories. तो दमानी एंड हबीब है, उसमें ऑर्डर तो अभी फिलहाल पता नहीं था, बट नाउ आई कैन से कि देखो ये बोलता है कि ओनली द बाजपेयी एंड गांगुली फैमिलीज पेड लेस देन दमानी। तो यार ऐसा नहीं हो सकता ना कि डी ऊपर आए और आपका एच नीचे आए, और इट कुड बी देयर, राइट, तो डी एंड एच हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनका ट्रांजिशन होने वाला है। क्यों? बिकॉज दे पेड डिफरेंट अमाउंट। तो जहाँ पे भी वो ट्रांजिशन होगा, अब देखो 5 and 6 इज एलिमिनेटेड, राइट, ऊपर हो सकता है, बट इसने बोला कि डी के नीचे डिफरेंट प्राइसेस वाले, उससे लेस प्राइसेस वाले सिर्फ क्या होने चाहिए, बाजपेयी एंड गांगुली होने चाहिए। बट अगर डी को आपने ऊपर रखा तो एच भी तो उससे नीचे आ जाएगा, राइट, एच कैन नॉट हैव द सेम प्राइस एज डी। दैट मीन्स पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कौन सी पॉसिबिलिटी लेनी है? एच एंड उसके नीचे आपका डी, राइट, ताकि डी के नीचे फिर आपका दो ही पॉसिबिलिटी बन पाए, दैट इज बाजपेयी एंड गांगुली आएगा, एंड ऑल्सो फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट जहां पे ए एंड बी हैव टू बी द फार्देस्ट। तो अब अपने को क्लियर है कि देखो एच एंड डी कहीं पे बीच में होगा, बट ए एंड डी में ऊपर, सॉरी ए एंड बी, बाजपेयी में ऊपर कौन आएगा? ए आएगा, कहीं पे सबसे टॉप में आपका ए आना पड़ेगा। सो इसी वाले प्राइस बैंड में होगा, एंड बी आपका कहाँ पे होगा? बॉटम प्राइस बैंड पे होगा, राइट, इस वाले में ही होना पड़ेगा। ऑल्सो इट इज सेइंग कि एच एंड डी में डी से नीचे कौन है? ओनली द 2 पीपल हु हैव पेड लेस देन दमानी आर बी एंड जी। बी तो सबसे नीचे होगा, दैट मीन्स बी से ऊपर आपका जी आएगा, राइट। तो थोड़ा बहुत आपका ऑर्डर क्लियर है कि ए टॉप प्राइस बैंड में है, एच एंड डी को कहीं ट्रांजिशन वाले में डालना है, अभी हम इसको भी प्लेस करेंगे, बट डी के नीचे सिर्फ 2 लोग आने चाहिए, दैट इज जी एंड बी। अब आप इसको यूज करके ये डिसाइड कर सकते हो कि एच एंड डी का डालना कहाँ पे है। तो देखो ट्रांजिशन वाले एरिया में डालना है। ट्रांजिशन वाला एरिया पहला 5 and 6 पॉसिबल, मे बी अब नहीं है बिकॉज 6 आपने ब्लॉक कर दिया है। 10 and 11 में हो सकता है, राइट, उससे ऊपर हो सकता है कि नहीं। तो 10, 11 के बाद एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दैट इज 15 and 16। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 15 and 16 में एच एंड डी को डाला तो डी से नीचे जो प्राइस वाले वैल्यूज होंगे वो इस 70 वाले में भी आपके 2 आने पड़ेंगे और इस 60 वाले में भी 2 आने पड़ेंगे। सो देयर बी 4 पीपल हु हैव पेड लेसर दैन दमानी। तो इसलिए
वो जो ट्रांजिशन होने वाला है 16 एंड 15 में नहीं होने वाला एच एंड डी का, वो कहाँ पे होगा आपका दिस प्राइस पॉइंट 11 एंड 10। दैट मीन्स यहाँ पे अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे गारंटीड है, यहाँ पे कौन होगा, एच होगा और यहाँ पे आपका डी होगा, राइट। नाउ एच एंड डी। नाउ एक और स्टेटमेंट था, ओनली डी एंड एच आर द टू पीपल हु हैव बॉट फ्लैट्स ऑन कंसेक्यूटिव। तो अब देखो कभी भी कंसेक्यूटिव नहीं रखना है आपको। तो जैसे कि डी यहाँ पे आपने इसको प्लेस करा, दैट मीन्स ये वेकेंट जाना चाहिए, इसमें किसी ने बाई नहीं करा होगा। लेकिन ये जो 70 वाला प्राइस बैंड है, इसमें टोटल आपको 2 लोगों को प्लेस भी तो करना है। तो 10 आपका ऑक्यूपाइड है, 9 ब्लॉक्ड है, 7 ब्लॉक्ड है और 6 ब्लॉक्ड है। दैट मीन्स यहाँ कोई ना कोई आपका बाई करके बैठा होगा। अच्छा, ये कौन बाई किया होगा, ये जी और बी बाई नहीं किए होंगे, ये जी और बी के अलावा कोई पर्सन बाई किया होगा, बिकॉज वो डी के बराबर पे कर रहा है, दैट इज 70 ईच। दैट मीन्स जी और बी इस वाले ग्रुप में कहीं ना कहीं होंगे, 5 4 3 2 1 में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके आएंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ऑल्सो अब जैसे 11 में आपका एच ने बाई करा है, दैट मीन्स यहाँ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कोई बाई नहीं कर सकता, बिकॉज वो कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। नाउ इस 80 वाले प्राइस बैंड में देखो, इस 80 वाले प्राइस बैंड में आपकी 3 प्लेसेस वेकेंट है, 15 14 एंड 13, और 11 वाला किसी एक ने बाई करा। बट टोटल आपको इस 80 वाले प्राइस बैंड में यहाँ से लेके यहाँ तक वी नीड सच 3 पीपल, राइट, हु आर बाइंग फ्लैट्स। एक आपने अकाउंट कर लिया है, तो बचे हुए 3 प्लेसेस में आपको 2 प्लेसेस चाहिए, वो भी कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट वुड बी ऑफ 15 एंड 13। यहाँ पे 2 लोग बाई करेंगे, यहाँ पे बाई नहीं होगा। देन अगेन 15 में बिकॉज समवन इज बाइंग, तो यहाँ पे कोई बाई नहीं करेगा, 16 पे कंसेक्यूटिव नहीं होना है। देन इस 90 प्राइस पॉइंट पे अगर सोचोगे तो 2 लोग को अभी भी आपको लाइक बाई कराना है, तो 2 कंसेक्यूटिव होना नहीं चाहिए, तो आप कहाँ पे प्लेस कर सकते हो। द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज ऑफ 19 एंड 17, और कहीं नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो कंसेक्यूटिव आना पड़ेगा। तो 18 वुड बी ब्लॉक। सो 19 17 15 फिर 13 11 10 एंड 8 दीज आर ऑलरेडी फिक्स। नाउ एक स्टेटमेंट हमारे पास था, वो फ्लैट जो स्टोरी नंबर्स थे ना, उनसे हम एक्चुअली में फिगर आउट कर सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला आपका ब्लॉक है ऑफ 60 lakhs, इसमें वो 2 कौन से नंबर होंगे। तो क्या करा जाए, हम पहले ना इन नंबर्स को नोटिस कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाले ब्लॉक में क्या होगा, 19 एंड 17। ऑल्सो नाउ आई कैन से आई कैन प्लेस दिस ए, राइट। तो ए को सबसे फारदेस्ट होना पड़ेगा ना, ए तो टॉप पोजीशन ही बाई करेगा आपका, तो ए आपका यहाँ पे टॉप पे है। नाउ लेट्स ऐड, सो 19 एंड 17, सो दिस वुड बी व्हाट 36। फिर नेक्स्ट 80 वाले में क्या क्या है, 15 है, 13 है और 11 है, ऑल्टरनेट। सो 11 13 एंड 15, मिडिल नंबर 13, तो 13 इंटू 3 39 हो गया। देन 70 वाले में 10 एंड 8 बाई करा गया है, दैट इज 18, सो 18। सो अगर मैं इन तीनों नंबर को ऐड करूं, 36 प्लस 39, सो दिस वुड बी 75, 75 प्लस 18, दिस वुड बी 93। सो 93 है, और टोटल आपका द सम ऑफ टोटल ऑफ द स्टोरी नंबर्स ऑफ द 9 फ्लैट्स वाज 100। इसका मतलब 93 के बाद आपका क्या आना चाहिए, 7 और आना चाहिए 2 फ्लैट से। तो वो 2 फ्लैट कहाँ पे हैं, 60 लाख वाले हैं। तो ये 2 में कौन से नंबर है जिनका एडिशन आपका क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो देखो 1 नहीं हो सकता, 1 के साथ कोई भी नंबर की पेयरिंग नहीं हो पाएगी, बिकॉज 2 नंबर आपको चाहिए, तो 1 तो ब्लॉक्ड हो गया। अब 2 ही पॉसिबिलिटी बचती है आपकी, आइदर इट इज 5 एंड 2 और इट कुड बी 4 एंड 3, 7 बनाने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है 4 एंड 3 हो नहीं सकता, बिकॉज वो कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स 4 एंड 3 आर नॉट बॉट, 5 एंड 2 हैव बीन बॉट। एंड बिकॉज सबसे दूर दूर कौन रहने वाले हैं, ए एंड क्या लिखा था, ए एंड बी, वाजपेयी एंड आचार्य। दैट मीन्स द सेकेंड पोजिशन इज नाउ ऑक्यूपाइड बाई बी। सो ये बी आपका फिक्स हो जाता है, और बी से जस्ट ऊपर कौन होगा फिर आपका, ये जी होगा, बिकॉज डी के नीचे डिफरेंट प्राइस वाले कौन थे, जी एंड बी। तो ये नहीं है, 8th वाला नहीं, वो क्योंकि वो तो सेम पे कर रहा है। सो ये वाला 5th वाला कौन हो जाएगा आपका, जी। तो इसको भी मैं यूनिकली यहाँ पे फिगर आउट कर सकता हूँ। सो ये हमने बता दिया कि कौन मतलब कौन से आपके स्टोरीज पे फ्लैट्स बुकड है। दिस कैन बी यूनिकली सेड, बट नाउ वी डोंट हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन कि इन 5 लोगों के अलावा, ए एच डी जी एंड बी, इन 5 के अलावा द रिमेनिंग 4 उनके बारे में अब आप नहीं बता सकते हो कि किसने कहाँ पे एक्चुअली में बाई किया है। सो दैट इज ऑल वी कैन फिगर आउट इन दिस पर्टिकुलर सेट। नाउ वी कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स।
सो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द अमाउंट स्पेंड बाई चावचरिया फैमिली, कौन सा नहीं हो सकता, डेफिनेटली राइट, विच कुड नॉट बी द अमाउंट स्पेंड। तो व्हाट आई कैन से 60 lakhs नहीं हो सकता, बिकॉज 60 लाख वाले जो दोनों पर्सन है उनके बारे में आप यूनिकली बोल दिए, दीज आर GNB, सो चावचरिया फैमिली, दैट इज फैमिली C, कैन नॉट स्पेंड दिस 60 lakh। उसके अलावा स्पेंड कर सकते हैं, इट कुड बी 90, इट कुड बी 80 एज वेल, इट कुड बी 70 एज वेल, बट 60 कैन नॉट बी स्पेंड, सो आंसर बी ऑप्शन A। Then which of the following stories is occupied by one of the 9 families? So बस आप ये चेक कर लो, बिकॉज स्टोरीज तो हमें क्लियरली पता है, 4th ऑक्यूपाइड है क्या, 4th इज नॉट ऑक्यूपाइड, 8th इज इट ऑक्यूपाइड, 8th इज येस ऑक्यूपाइड, सो 8th वुड बी द करेक्ट आंसर। 12th एंड 16th अगर आप चेक करो, दीज आर ऑल्सो नॉट ऑक्यूपाइड, सो आंसर वुड बी बी ऑप्शन। Then for how many of the families can we determine the exact story they purchased a flat on? कितनी families के लिए? We just said for only 5 out of these 9 families, A, H, D, G and B, we can uniquely figure out the exact story they have purchased a flat on. So the answer to the third problem would be 5. Now this is a conditional statement. If the Iyengar family, so I पेड मोर देन द चावचरिया फैमिली, सो आई के नीचे सी आना पड़ेगा, ऑल्सो डिफरेंट प्राइस पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट है। सो आई हैव पेड मोर देन सी, हु इन टर्न, दैट इज सी हैज पेड मोर देन ई, देन हाउ मच डिड द फर्नांडिस फैमिली पे, तो यही है जो रिमेनिंग है, उसमें कुछ सोचना है। देखो आई, सी एंड ई ना 4 ही प्राइस पॉइंट थे, ये 60 वाला तो पूरा इन्फॉर्मेशन है कि कौन बाई कर रहा है, तो आई, सी एंड ई बिकॉज डिफरेंट प्राइस पॉइंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आई इस ग्रुप का पार्ट होगा, सी इस सेकंड वाले ग्रुप का पार्ट होगा और ई इस ग्रुप का पार्ट होगा। ना इसमें भी ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो 90 वाला प्राइस पॉइंट है उसमें 2 फ्लैट है, उसमें से एक ए का गारंटीड है, दूसरा फिर किसका हो जाएगा, आई का हो जाएगा, तो यहाँ पे आप आई लिख सकते हो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। देन ये लास्ट वाला जो प्राइस पॉइंट है 70 वाला, इसमें 70 सेकंड लास्ट, इसमें एक तो डी ने ऑक्यूपाई कर रहा है, एक ही बचा है, एंड दैट हैज टू बी ऑक्यूपाइड बाई जस्ट एक बोटे ई फैमिली, दैट मीन्स बाकी जितने भी है ना, दैट इज दिस ये सी चावचरिया फैमिली बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, तो एक ही फैमिली बचती है, एंड उसी के बारे में उसने पूछा भी है, हाउ मच डिड द फर्नांडिस फैमिली पे, तो यहाँ पे इसमें 2 में अब सी भी आपका इस 15 या 13 में से कहीं पे रह रहा है, यूनिक पोजीशन नहीं बता पाओगे, बट द लेफ्ट ओवर फैमिली हैज टू बी दिस फर्नांडिस फैमिली, सो फर्नांडिस फैमिली इज ऑल्सो पेइंग दिस 80 lakhs. Right, so this was the interesting set, this is the interesting arrangement based set, and I would classify this somewhere in the moderate line. This is a good set, interesting set, thoda moderate hai, right? Now I hope you understood this set. Again, if you have any doubts in this particular set, you can just put that in the comments. Thank you.